हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 8 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस को कंटिन्यू करते हुए आर एस अग्रवाल्स की एक्सरसाइज 12A के कुछ क्वेश्चंस 4 से ऑनवर्ड्स करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है ए टैक्सी चार्जेज ए फेयर ऑफ 1275 रुपीज़ फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर्स। हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। व्हाट इज़ गिवन। यहाँ पर फेयर लगता है 1275 रुपीज़ जब वो जर्नी करता 150 किलोमीटर्स का। फिर पूछा जाता है कि अगर वो जर्नी 125 किलोमीटर्स करे तो कितने रुपीज़ फेयर के रूप में लगेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द फेयर बी आर एक्स रुपीज़। इस क्वेश्चंस में हम फेयर को क्या मान लेंगे, एक्स रुपीज़ मान लेंगे। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में यहाँ हमने क्या कवर किया, डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, दिस इज इन किलोमीटर, एंड यहाँ लिखेंगे फेयर इन रुपीज़। व्हाट हैपन व्हेन ही सफर्स 150 किलोमीटर्स, fare is 1275 rupees. Then what happened when he suffers 124 kilometer? Then here you have supposed the fare be x rupees. So when we solve these, now we check the datas. Given datas are in direct variation or indirect variation. आपको पता है कि अगर हम किसी भी टैक्सी के थ्रू अगर मैं सफ़र करता हूं तो जितने अधिक किलोमीटर चलूंगा उतने अधिक हमको फेयर देना पड़ेगा। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेज फेयर आल्सो इंक्रीजेज, सो द गिवन डाटाज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सिंस डाटाज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, so we can say that 150 by 1275 is equal to 124 by x. Now by the cross multiplication हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x इंटू 150 is equal to 124 into 1275. What is the value of x? That is 124 into 1275 by 150. Now 25 6 जा 25 से कटेगा 150 6 टाइम्स, 25 5 जा 125 एंड 25 1 जा। नाउ 3 2 जा 3 1 जा एंड 3 7 जा 21, 2 6 जा 2 2 जा। देन व्हाट हैपन 62 इंटू 17। नाउ 17 2 जा 34, कैरी 3 7 6 जा, दैट इज 1054। देयरफॉर cost or fare we can say that is rupees 1054. Now the next question, question number 5 is a truck covers 16 kilometer in 25 minutes. A loaded truck is given here and it covers 16 kilometer in 25 minutes. At the same speed, how far can it travel in 5 hours? At the same speed, how far? How far means how much distance is covered by this. So let truck covers in 5 hours. 5 hours means 5 into 60 minutes. Is x kilometer. So we prepare a table, we write here time taken and we write here distance covered. This is the time taken. What happened here?
It covers 16 kilometer in 25 minutes. So we put here 25 minutes and here 16 kilometer. And we want to know in 5 hours how far it can travel. Suppose it travels x kilometers in 5 hours. 5 hours means 5 into 60. So as you know, if you suffers on any taxi, then more time means more distance covered. So the given data are in direct variation. So we can say that 25 by 16 is equal to 5 into 60 by x. What happened when you multiply? 25 into x is equal to 16 into 5 into 60. What is the value of x? इसको उस साइड भेजेंगे, ये होगा 16 into 5 into 60 by 25. 5 जा 25, 5 12 जा. Now what is the value of x? 12 6 जा 72, carry 7, 12 1 जा 12, 7 92. That is 192. This is the calculation. So loaded truck covers 192 kilometer in 5 hours. Now the question number 16 is if 10 dolls cost 630 rupees. मतलब 630 रुपीज़ में 18 डॉल्स की परचेजिंग होती है. हाउ मेनी डॉल्स कैन बी ब्रॉट इन फॉर रुपीज़ 455 रुपीज़. तो 455 रुपीज़ में कितने डॉल्स परचेज्ड किए जा सकते हैं. तो लेट द नंबर ऑफ डॉल्स कैन बी परचेज्ड. लेट नंबर ऑफ डॉल्स कैन बी ब्रॉट is equal to x. So we put here cost of dolls in rupees and here number of dolls. What happened here? Here when price is 630, the total numbers of dolls is 18. And when price is 455, you have supposed the number of dolls is x. आपको पता है कि कम पैसे में कम डॉल्स खरीदी जा सकती हैं. मोर मनीज आप लगाओगे और अधिक पैसे लगाओगे तो अधिक डॉल्स खरीदा जाएगा. इट मीन्स एज वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेज another is also increases. So these data is also are in direct variation. Then we can write 630 by 18 is equal to 455 by x. By cross multiplication we get 630 into x is equal to 18 into 455. Then what is the value of x? That is 18 into 455 by 630. Now solve this. This can be cancelled out by 3. 3 2 ja 6, 3 1 ja 3 0 ja and 3 6 ja 18. Once again 3 2 ja 6, 3 7 ja 0 and 2 35 ja. Now 5 7 ja, 5 9 ja 45 and 5 1 ja and 7 1 ja and 7 3 ja 21. So the value of x is equal to 13. So how many dolls can be purchased? 13 dolls can be purchased in 455 rupees. Now the next question is question number 7. If 7 kgs of sugar cost 166.50, how much sugar can be brought for 259? ये कहता है कि अगर 166 रुपीज़ 50 पैसे में 9 kg शुगर खरीदा जा सकता है तो 259 में कितना शुगर खरीदा जा सकता है. तो लेट x kg sugar can be purchased. So we put here cost in rupees and quantity of sugar.
quantity of sugar. When we placed here in the given box, we get, when the cost is 166.50 is given, how much sugar is purchased, that is 9 kg. Then when cost is involved 259 rupees, how much sugar you purchased? Here suppose you have x kg sugar is purchased, so we can write like this, in this way. तो आप जैसा कि बच्चों जानते हो कि अगर कम पैसे लगाओगे तो कम शुगर खरीदोगे, अधिक पैसे लगाओगे तो अधिक शुगर खरीदोगे. सो द डाटाज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. सो वी कैन राइट 166.50 by 9 is equal to 259 by x. By cross multiplication you can write 166.50 into x is equal to 259 into 9. Now the value of x is equal to, that is 259 into 9. इसको राइट साइड में लेकर के जाओगे, that is 166.50. बच्चों ये डेसिमल हटाने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा. ये 0 इससे डिवाइड कर दो. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 1 1 1 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 1 3 7 ज़ा 29. नाउ व्हाट हैपन, आप 37 से इसको अगर 7 टाइम्स कर दो, 37 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ दो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 एंड 4 259. So this will be cancelled out by 7 times. What is the value of x? That is 7 into 2, that is 14. So 14 kg sugar can be purchased in 259 rupees. Okay, so now the next question, question number 8. The cost of 15 meters of a cloth is 981 rupees. बच्चों कहता है कि 15 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है that is 981 rupees. What length of this cloth can be purchased for 1308? कितना लेंथ परचेज किया जा सकता है 1308 रुपीज़ में? तो लेट x मीटर of cloth can be purchased. So we prepare a box like this. We put here cost in rupees and length of cloth. When cost is 981 rupees, length of cloth is 15 meter. When cost is 1308, let the required length of cloth be x meter. तो आपको पता है कि कम पैसे लगाओगे कम कपड़े मिलेंगे, अधिक पैसे लगाओगे अधिक कपड़े मिलेंगे. So these datas are also in direct variation. So we can write their ratios are equal. It means 981 by 15 is equal to 1308 by x. By cross multiplication we get like this into 15. इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई. तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई 981
ये हो जाएगा 1308 इंटू 15 बाई 981. Now solve this, we get the result. So we can say that is a 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. Now 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 0 जा 3 9 जा 27. Now 109 and this is 436. So this will be cancelled out by 4 times. देखो 10 4 जा 400, 9 4 जा 36. So what is the x is equal to b 20. Therefore 20 meter of cloth can be purchased. Okay. बच्चों, in question number 9, in a model ship, the mast is 9 centimeter high. There are two ships, that is the model ship, and second one the actual ship. There are two ship, that is the model. और उस मॉडल, जो मॉडल बनाया गया है शिप का, एक जनरल मॉडल बनाया गया, उसके अनुसार जो एक्चुअल शिप बनाया गया है वो यहाँ लिखा जा रहा. कहता है इन ए मॉडल शिप मास्ट इज 9 सेंटीमीटर. सपोज वी पुट हियर मास्ट. इन ए मॉडल शिप द लेंथ ऑफ मास्ट इज 9 सेंटीमीटर, व्हाइल मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, जबकि मास्ट क्या दिया गया, एक्चुअल शिप में दिया गया 15 मीटर. The length of the ship is 35 meter. The length of ship is 35 meter. Suppose this is length. तो length किसका दिया है? The ship is 35 meter. It means length of actual ship is given, that is 35 meter. How long the model ship? तो model ship कितना length होगा? तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे 9. Let the length of मॉडल शिप बी x मीटर. शो बच्चों, अगर मॉडल शिप है तो उसकी लेंथ कम होगी तो मास्ट की हाइट भी कम होगी. एक्चुअल शिप में लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है तो उस केस में उसके मास्ट की हाइट भी अधिक हो जाती है. इट मीन्स एज द लेंथ इंक्रीजेज द हाइट ऑफ मास्ट इज आल्सो इंक्रीजेज. सो डाटा गिवन डाटा आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. सो वी कैन राइट 9 बाई 15 इज इक्वल टू x बाई 35. बच्चों, हमें यहाँ रेशियो निकालना है, इसलिए यूनिट का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि ये मीटर में दिया है तो यहाँ हमें इसको क्या कर लेना चाहिए, 9 बाई 100 इसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मीटर में. तो यहाँ हम लिखेंगे 9 बाई 100 मीटर. अब बच्चों ये हो गया. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस कैन बी रिटेन एज 9 बाई 100 इंटू 15 इज इक्वल टू x बाई 35. बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 35 इंटू 9 इज इक्वल टू x इंटू 100 इंटू 15. व्हाट हैपन अबाउट x? इसको हम इस साइड भेजेंगे. दिस कैन बी रिटेन एज 35 इंटू 9 बाई 100 इंटू 15. बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35. दिस इज गिवन एट 7 3 जा 21 बाई 100 मीटर्स. तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदल दें तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में. दिस विल बी कैंसिल आउट. आंसर इज 121 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ मॉडल शिप विल बी 21 centimeter. Now the question number 10 is, in 8 days earth picks up this kgs of dust from the atmosphere. 8 days में अर्थ जो है पिक करता है इतना kg डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हाउ मच डस्ट इट विल पिक इन 15 डेज. तो बट नेचुरल है, कम डेज में कम डस्ट पिक करेगा, पकड़ेगा, अधिक डेज में अधिक डस्ट पिक करेगा. तो यहाँ पर हमें पूछा गया हाउ मच डस्ट विल पिक. लेट x kg dust will be picked. Then हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे
डेज और यहाँ लिखेंगे डस्ट। तो डेज हमारा 8 डेज में 6.4 इंटू 10⁻7 kg, इसको हटा देते हैं यूनिट यहाँ से। तो हमें 15 डेज में सपोज कर लेते हैं x। सिंस दीज डाटाज आर इन गिवन इन डायरेक्ट वेरिएशन, सो वी कैन पुट 8/6.4 इंटू 10⁻7 is equal to 15/x. So by cross multiplication we can write 8 is equal to 15 into 6.4 into 10⁻7 by 8. 8 8 जा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 12. This into 10⁻7. So 12 into 10⁻7 kg dust can be picked in 15 days.